on the dais and off the dais. Comrade S. Nagarajan, General Secretary, All India Banking Officers Association, Charanjit Joshi ji, Deputy General Secretary, Comrade Ashwini Saini, Secretary, All India Banking Officers Association, Arun Kumar Gupta, that we have faced recently a very attack. It was a air strikes, no doubt that was all prevented by our air strike available defense here, S-400. So we are now safe. You know what happened in Pahalgam. You know how we retaliated by having air strikes. And now, no doubt, Jammu and Kashmir seems to be very peaceful, very beautiful. Kashmir Valley, Jammu, and it is a tourism, as you may say, is a religious. There is a religious tourism, scenic tourism, and all other even adventurous tourism. We are known for Sufism here and other religious practices. No doubt, three regions have separate identity. Ladakh has its own identity, Kashmir has its own ethnicity, and other this religion and other things. The culture, you may say, Jammu has its own. Jammu is called a city of temple, but as we have heard, that Jambulochan, who the king who founded this city, he saw somewhere in Tavi River, near Tavi River, a goat and lion drinking water together. Then he thought that it's the proper place. We have coexistence of different. There was not urbanization at that time. Then he founded city of Jammu. Afterwards, later on, you might be knowing how Jammu was Raja Gulab Singh became Jammu's Raja, and after the Amritsar Treaty, he founded this state, princely state, added Kashmir, and afterward Maharaja's general, Joravar Singh, annexed this Ladakh and other part of Ladakh area, and annexed with now our territory now POK now is with Gilgit-Baltistan. There is a resolution of 1994 which we have resolved that other part we would get it back. Now these are what I have said about Jammu and Kashmir. Now I come to the point where we welcome again because he was not available. He is a vehicle life for you all comrades. This comrade, they are just like fakirs, Sufis. They live very simple life and very comfortable, and no hi-fi, no life, comfortable life, and they are concerned with what a simple man requires. Now I will add one more things. Now we touch here the Indian economy. मैं अभी Indian economy की बात करूँगा, and I will use both the languages that everybody will be comfortable here. क्या है इंडियन इकोनॉमी, क्या है? एक हम जो एक नैरेटिव है, बात है, और जो सच्चाई भी उसमें हो सकती है. रिच नेशन विद पुअर पॉपुलेशन. तो वेरी स्ट्रेंज हाउ देयर इज a one called a rich nation and with poor population. तो रिच जो आप डाटा देखते हैं, जो आप बात करते हैं, रिचनेस जो आप चीजें देख रहे हैं, हमारा जीडीपी, हमारी जो ग्रोथ रेट जो जैसे बात करते हैं कि भाई ये फिफ्थ इकोनॉमी और फास्टर ग्रोइंग इकोनॉमी बन रही है, लेकिन दूसरी तरफ हम पर कैपिटा इनकम देखते हैं तो वो क्या है, हम स्टैंड करते हैं 142 रैंक पे जो वर्ल्ड का एक वो है. और एक बात और आती है कि 1% लोग हैं जिनके पास 40% जो है, जो देश की जो मनी कह सकते हो, जो असेट्स कह सकते हो,
और दूसरी साइड पे कि 60% जो लोग हैं उनके पास वो आप समझो बाकी वाला जो अमाउंट है। तो ये जो अब बात आती है कि हम इकोनॉमिक जो ये स्टेबिलिटी क्यों नहीं है, क्यों पर कैपिटा इनकम और जीडीपी में फर्क है, क्यों लोग कम इन्वॉल्व हैं और पुअर क्यों नेशन रहता है, और क्यों हमारे 80 करोड़ लोग ऑफ 75 वो जो हमारा फूड सिक्योरिटी एक्ट है उस पर डिपेंडेंट, हम क्यों उनको जो एफसीआई देता है या कोई और जो हमारी ऑर्गेनाइजेशन है वो देती है, क्यों जरूरत पड़ती है गरीब को, और रिच इज बिकमिंग रिच एंड गरीब इज स्टिल पॉवर्टी, और वेरी स्लो रेट इज जो एलिवेशन हो रही है, जो पॉवर्टी लाइन से ऊपर लोग आ रहे हैं। तो एक मैंने कहीं बात की तो एक बात आ गई कि हमारा जो ये इंडियन जो फूड सिक्योरिटी एक्ट क्यों बनाया, क्यों हम देते हैं, क्योंकि हमारा फूड ग्रेन खराब हो जाता है। तो फूड ग्रेन कितनी आप देखो ग्रोथ करना होगा, हमारी जो अग्रेरियन सोसाइटी है इंडिया, हम कैसे ग्रोथ करते हैं ग्रेन को, और जो कल्टीवेट करता है कास्ट, जो एक जो कल्टीवेट करता है एक किसान, और बस ऊपर देखता है क्योंकि हमारे पास इरिगेशन सिस्टम प्रॉपर नहीं है, वो देखता है कब बारिश होगी, कब ये अपने सिस्टम से ग्रो होगी मेरी, और वो गंदम क्यों खराब हो। तो उन्होंने कहा कि गंदम जो खराब होता है वो लोगों में बांटते हैं। ये कोई बात है, जो तो वो वाली बात है ना कि आप उनकी बेइज्जती भी कर रहे हो और एक सिक्योरिटी एक्ट भी बना रहे हो। तो ये जो एक फर्क है, ये जो एक बात है, इसको भी आप देखें। और कहते थे, अभी हम बात कर रहे थे कि इंडिया एक सोने की चिड़िया है, मुझे लगता है आज भी सोने की चिड़िया है। अगर इसकी आप देखो ग्रोथ देखो, जीडीपी देखो, जहां इसको जो एक फास्टर ग्रोइंग इकोनॉमी देखो, लेकिन फिर गरीब क्यों है, मैं ये भी बात आती है। तो एक बात आ गई जो मार्क्स ने कहा एक टाइम पे, मार्क्स की थ्योरी आई, जो आप लोग काम रोड रहे तो मैं थोड़ी वो भी बात करूंगा कि डिक्टेटरशिप होनी चाहिए, प्रोलेटरेट जो प्रोलेटरेट हैं वो लोगों की डिक्टेटरशिप होनी चाहिए। वो डिक्टेटरशिप कैसे होगी जब ब्रूजर्स है, एक है हैव, एक है हैव नॉट। एक वर्किंग क्लास है, जो वर्किंग क्लास एक टाइम पे सिर्फ ये देखती है कि क्या मुझे शाम को ये बेसिस मिलेंगे, और बेसिस कई लोग हैं हमारे डेली बेसिस जहां होंगे जम्मू कश्मीर, कई दिनों से कई सालों से वो उनको बेसिस नहीं मिलते, एक ये भी बात है। और मैं एक बात कहूं, जम्मू कश्मीर पर पूरी इंडिया में आप नोट करना, एक टाइम पे ये था कि जो लेबर चार्ज के बगैर काम लिया जाता था, जो भी उसका हुक्मरान था, चलो डेमोक्रेसी आई, और जहां पे जो आप देखोगे प्री इंडिपेंडेंस जो ब्रिटिश राज था, हमारे लोगों को लिए जबरदस्ती वो गिट मिटिए जो कहते हैं लफ्ज है, वो गन्ना उगाने के लिए ले जाते थे लोगों को जहां से। और जो हमारी आज कुछ कंट्रीज में हमारे लोग हैं वहां पे इंडियंस हैं, और कुछ लोग डेमोक्रेसी की वजह से वहां पे पीएमडी बन गए, अच्छी पोस्टों पे हैं, जहां पे भी आप देख लियो जो हमारी नियर बाई कंट्रीज है, जो अफ्रीकन कंट्रीज में भी जो गन्ना ग्रोथ के लिए, और बिल्कुल उनको कहते बेगार करवाते थे, फोर्सिबल लेबर होती थी, बेसिस नहीं देते थे। एक जब हम फर्स्ट में कि हमने लेबर डे पे बात की तो मैंने कहा आप कह रहे हो बेसिस के लिए आप लड़ रहे हो, ये आज बेसिस इतने हैं, जैसे बैंक ऑफिसर्स एसोसिएशन अपनी बात करता है कि हमारे पे बढ़ाए जाए, हमारे जो एक जो है आर्स रेगुलेट किए जाएं, ये आप लोगों की कामरेड लोगों की, जो लोग एक बीकन लाइट है जैसे जहां पे जो लीड करते हैं लोग, ये इनका स्ट्रगल है। देखिए सभी स्ट्रगल में पार्टिसिपेट नहीं करते, जो लीड करते हैं और लीड करते हैं वो सैक्रिफिकेशन है। जो लीड करना आसान काम नहीं है, किसी भी चीज को, किसी भी स्ट्रगल में आना, तो ये उनकी वजह से है। बातें बड़ी है, मुझे एक चिट भी मिल गई है कि आप थोड़ा सा टाइम की कंस्ट्रेंट है। देखिए ये एक बात आई, ये भी हम नहीं कर सकते, जैसे एक बड़ी बात आई, क्लोज इकॉनमी भी नहीं रख सकते।
ये इकोनॉमिक्स में, मैं इकोनॉमिक्स का छात्र नहीं हूँ, नहीं मैं स्टूडेंट हूँ, लेकिन मैं बात कर सकता हूँ। लिबरल इकॉनमी होनी भी चाहिए, और 1991 में हुई, क्योंकि क्लोज इकॉनमी होगी। जैसे एक टाइम पे बहुत सी, आज वो प्रोग्रेस कर रही है, चाइना है, इसकी क्लोज इकॉनमी थी, और भी बड़ी कंट्रीज थी जहाँ पे जो इनफ्लो जो है एफडीआई का नहीं आना देते थे, जैसे हमारे यहाँ पे था 1990 में लिबरलाइजेशन। और ये आपको पता है, आप सभी लोगों को, मैं इस पर बात लंबी नहीं करूँगा। लेकिन ये जो मनी है ना, मैंने एक अपने फेसबुक पे एक पेज भी लिखा है, उसमें बात किया है कि आने वाला वक्त जो आप लिखोगे कैपिटलिज्म का जो हो रहा है, लेकिन हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है, ये मैं कहता हूँ इनहेरेंटली संविधान जो हमारा था, इनहेरेंटली वो सोशलिज्म की बात करता था, सेकुलरिज्म की बात करता था। इट वाज नॉट, नो डाउट इट वाज इंट्रोड्यूस्ड, दी टू वर्ड्स वर इंट्रोड्यूस्ड आफ्टरवर्ड्स, लेकिन इनहेरेंट तभी तो नेशनलाइजेशन ऑफ बैंक्स हुई, जहां पे नेशनल क्यों करना पड़ी, शौक का सिस्टम, कोई सिस्टम ही नहीं था कि आप सारा काम, एक मजदूर, एक किसान काम करता था, और उसकी कभी कोई काम अगर पड़ता, बच्चों को पढ़ना था, कोई हेल्थ इशू हो जाता था, जब कोई और किस्म की, तो उसको शौकार के पास करता जाता, अनकंट्रोल्ड था जो उनके टैक्सेस होते हैं। आज मैं आ जाऊंगा जहां पे जो एक पब्लिक सेक्टर बैंक है, नेशनलाइजेशन उस वक्त क्यों करने पड़ी, क्योंकि वहां पे मुनाफाखोरी थी, कोई हिसाब नहीं था, कोई मैनेजमेंट नहीं थी, जितना भी लोगों को, और खासकर जो रूरल इंडिया था, जो महात्मा गांधी ने कहा, उसकी ग्रोथ ही नहीं, उसको पैसा, कुछ सेठ थे वो आपस में पैसा बांटते थे, जैसे एक जगह सेठ, दुनिया का सेठ, जो बंगाल में, कलकत्ता में थे, जिससे पैसा अंग्रेज भी लेते थे, उस किस्म का उस वक्त। वैसे ही जो बैंक थे प्राइवेट, जब नेशनलाइजेशन से पहले, तो वो भी वही वर्क करते थे, वो सिलेक्टिव जो देते थे। लेकिन अभी जो चेंज आई, जो हमारे जो प्राइवेट सेक्टर बैंक है, वो सारा काम करते हैं, शहर में करते हैं, लेकिन हमारे जो पब्लिक सेक्टर बैंक है, ये सारा रूरल एरिया। आज भी आप देखो, जो भी योजनाएं हैं, जो भी स्कीम्स हैं, वेलफेयर की स्कीम्स हैं इंडिया की गवर्नमेंट की, वो सारे एग्जीक्यूट कौन कर रहा है, इंप्लीमेंट कर रहा है, वो पब्लिक सेक्टर बैंक कर रहे हैं। जो एक आप पब्लिक सेक्टर नेशनलाइज, और जम्मू कश्मीर बैंक, मैं एक बात करूंगा, नो डाउट इससे neither it was nationalized nor it is a nationalized bank, but it is a private bank as per the definition. लेकिन इसकी आप ब्रांचें देखो, इसकी सर्विसेज देखो, मैं ले में जाओ, जहां कितना मिलिटेंसी का दौर हुआ, जो हमारे कामरेड है कश्मीर से, आप देखो उस वक्त भी काम किया हुआ, और लद्दाख यहाँ पे जीरो माइनस टेम्परेचर होता है। कई बार मैंने कई बातें सुनी है, और बड़ी आज नहीं है, जो काफी टाइम से है, वो जहां तक है कि लॉ जो आपका बिल वो गिलगित बल्तिस्तान के हिसाब से तुर्किक बिल, उसके हमारी ब्रांच जेएंडके बैंक, और जेएंडके बैंक और कोई सिक्योरिटी नहीं है, कोई कुछ नहीं, उसके बावजूद भी देखिए, आप देखो नेशनल एरिया में कितने ये जो वहां पे जो लूटे गए होंगे थे, लेकिन जम्मू कश्मीर बैंक इतना फ्रेंडली बैंक पूरे हर सिचुएशन में रहा। इसने काम, इस साली दौर हमारा 30 साल अभी भी केस कर रहे हैं, लेकिन ये जो इसका है, और आज प्रॉफिट आज बात की, और काफी लोग, और सारी जो गवर्नमेंट की स्कीम्स हैं, चाहे जन धन योजना है, मुद्रा है, कुछ भी है प्रॉपरली, और रूरल इंडिया को एग्रीकल्चर सेक्टर है, रेडियो सोसाइटी हमारी, सभी को यही देखता है, इसको लोन देता है, दूसरा देता है, तो बात बहुत लंबी है, करता रहो तो काफी टाइम लगेगा। तो लेकिन हम कहते हैं, मेरा एक जोड़ है कि देयर मस्ट बी ए बैलेंस टू बी स्ट्रक बिटवीन प्राइवेटाइजेशन एंड पब्लिक। और पब्लिक सेक्टर में जो लोग, मुझे लगता है आज उनको ज्यादा क्रेडिट होना चाहिए, ज्यादा काम करके दिखाना, क्योंकि आपको आपकी कॉन्बिलिटी है टूवर्ड्स नेशन, टूवर्ड्स पब्लिक, लेकिन प्राइवेट बैंक की कोई कॉन्बिलिटी नहीं है। और आप एक और मैं बात करूंगा, जो आउटसोर्स करवा रहे हैं कुछ काम, उनकी भी कोई कॉन्बिलिटी नहीं है कोई। और जो मैं एक और कहूंगा कि जो भी किसी भी बैंक की मैनेजमेंट हो,
वो इन्हीं लोगों में से हो, वो थोपी न जाए। होता क्या है, जो लोगों को बैंकिंग की नॉलेज नहीं है वो डायरेक्टर बन जाते हैं, नॉमिनेट हो जाते हैं और जो चेयरमैन बन जाते हैं, और उनका कोई पोलिटिकल मोटिवेटेड बातें होती है वहां पे, और जो सारा जो पैसा एक आम आदमी का होता है वहां पे, एक वो सारा आप मैं कहूँगा सीधा ड्रेनेज हो जाता है एक जगह। और वो क्या होता है, हमने काफी जहाँ पे बात की है, हमारे साथ अरुण जी भी हैं, इंडस्ट्री से रिलेटेड है, लेकिन इंडस्ट्री कैसे चल रही है जम्मू कश्मीर में या कहीं और भी, मैंने ये सभी को कहूँगा, लेकिन इसमें ये भी चीजें देखी और तभी होगा जब आप अभी 2 बैंक कहते हैं कि हमने नेशनलाइज करने हैं, पब्लिक सेक्टर बैंक बनाने हैं, प्राइवेट बैंक, लेकिन मुझे नहीं लगता कि इतनी जल्दी से जो कोई पब्लिक सेक्टर की जो बराबर और सोशलिज्म आगे चाहते हैं। देखिए बैंक एक वेलफेयर भी है, क्योंकि इंडिया इज ए वेलफेयर स्टेट, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कहता है, ठीक है। अगर फिर हमने अगर शौकारी करनी है तो फिर गवर्नमेंट शौकारी करनी है, तो अगर शौकारी नहीं करे तो फिर हर एक की जरूरत पूरी करनी है। जरूरत तभी पूरी हो सकती है जब आप एक सोशलिज्म की तरफ बढ़ेंगे। तो सोशलिज्म जो सोशलिस्ट इकॉनमी है वो तभी की है जब आप कोई चीज आती है आपके पास वो बांटी जाए इक्वली। मैंने ये कहता जो यहाँ पे लोग एम्प्लॉइज हैं इस बैंक के हैं, उनकी भी जो पॉलिसीज हैं, जब मैनेजमेंट है, जब दूसरी बातों में उनको भी सुना जाए। उनकी क्या, वो सिर्फ अपनी बात क्या करते हैं, हमारे इतने आर्थ होने चाहिए, उनको क्या जस्ट ए लेबरर, आपके बेसिस क्या होंगे वो भी कोई और तय करेगा, जबकि सारा कमाया जब सारा अकाउंट वो इकट्ठा करते हैं, एक जगह पे कर देते हैं, और कुछ लोग ले जाते हैं बैंक लोन जो बड़े बड़े लेते आते हैं, और दूसरे उनको शाम तक उनके बच्चों को एजुकेशन हेल्थ है, बहुत सी बातें हैं, लंबी बातें हैं, बैलेंस करके बात करता हूँ। तो मुझे लगता है ये आज के लिए काफी है, मुझे थैंक यू। I now request Comrade Ashwini Pradhan ji, General Secretary, Jammu Kashmir Ladakh Committee, AIDOA, sir. थैंक यू कॉमरेड्स। पहले तो आपका सभी का स्वागत। मैं अपनी जनरल सेक्रेटरी रिपोर्ट जो है 23